In my previous video, I have discussed about what is generative AI and what are the different types of applications of generative AI. तो इस प्लेलिस्ट में हम लोग और डिटेल्स में बात करेंगे about the technology behind generative AI. And this video is dedicated about the basics of generative AI. My name is Dr. Anand Devnath and you are watching AD Academy. I am an IIT Delhi alumni and I have total 9+ years of experience in the field of artificial intelligence, machine learning, deep learning, etc. So let's start. First of all, we should understand what is artificial intelligence, machine learning, deep learning, and where generative AI falls into this picture. If you consider artificial intelligence is a superset or a bigger set, and artificial intelligence is a branch of computer science that enables machine to mimic human behavior. Machine learning is a subset of artificial intelligence which uses statistical methods and algorithms to improve with experience. Now, machine learning are of two types. First one is supervised machine learning technique and another is unsupervised machine learning technique. In supervised machine learning technique, we use data which is leveled. Say for example, if you are a kid and there is a teacher who is supervising the kid to learn different things. Say for example, you are giving an apple to a kid and saying that it is an apple. Now, you are giving a banana to a kid and saying that it is a banana. What it is happening that you are again giving another type of banana and you are asking the kid what it is. So kid will have the intelligence because it has learned that what is apple and what is banana. So the kid will now tell that this is a banana. It means that you are using level data. But in unsupervised, we used training data or input data which are unleveled. In unsupervised learning, there is no prior information about the data and the data here is unleveled. इसका मतलब होता है मशीन खुद अपने आप रिकॉग्नाइज करना चाहता है कौन सा आइटम कौन से कैटेगरी में बिलोंग करता है एंड इट ट्राइज टू फाइंड आउट द पैटर्न इन द डेटा. से फॉर एन एग्जाम्पल, a supermarket wants to increase its revenue and it decides to implement a machine learning algorithm to sell its product. स्टोर में बहुत सारे मटेरियल्स है लाइक सब्जी भी हो सकता है, मिल्क, ब्रेड, बटर, सीरियल्स, एग. बट इफ यू ट्रेन अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स विद ऑल दिस डेटा तो ये देखा जाएगा द कस्टमर हु बाइज मिल्क विल ऑल्सो बाय सीरियल. तो ये मिल्क सीरियल एक कैटेगरी में आ जाएगा एंड एग, ब्रेड, बेकन विल गो इनटू अनदर कैटेगरी. तो ऐसे हम लोग डिफरेंट क्लस्टर में डिवाइड कर सकते हैं यूजिंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग and in deep learning uses neural network to stimulate human like behavior. Now अभी बात करते हैं generative AI इस वेन डायग्राम में कहाँ पे आता है. Generative AI is a subset of deep learning. What is generative AI? In generative AI we are using different techniques of deep learning like RNN, LSTM, GAN, transformer and many more things. We'll go into details of all these things later on. But ये जानते हैं generative AI is a subset of deep learning. And there is one more very important thing which nowadays people are working on is large language model. So this large language model is also a subset of generative AI. Thus, generative AI is a subset of deep learning. Generative AI uses artificial neural network and it can process leveled and also unleveled data using supervised, unsupervised and semi-supervised methods. Generative AI generates new data instances based on learned probability distribution of input data. Deep learning can be broadly classified into two types. One is discriminative and another is generative. In discriminative, typically it is being trained on level data. Generative AI is trained on both leveled and unleveled data. Discriminative deep learning
यूज होता है मेनली टू क्लासीफाई एंड टू प्रेडिक्ट, बट फॉर जनरेटिव एआई इट जनरेट्स न्यू डेटा बेस्ड ऑन इनपुट ट्रेनिंग डेटा। डिस्क्रिमिनेटिव डीप लर्निंग में ये लर्न करता है द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा एंड इट्स लेवल एंड अकॉर्डिंगली वो क्लासीफाई करता है, नहीं तो प्रेडिक्ट करता है। बट जेनरेटिव एआई में ये ट्राई करता है टू अंडरस्टैंड द इनपुट डेटा, इट ट्राइज टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। डिस्क्रिमिनेटिव डीप लर्निंग में क्या होता है, आपके पास कोई डॉग का इमेज है, कोई कैट का इमेज है, तो आप डिस्क्रिमिनेटिव डीप लर्निंग यूज करके उसको आप क्लासीफाई करोगे इनटू अ कैटेगरी, मतलब इट कैन बी आइदर अ डॉग और इट कैन बी अ कैट। तो ये कैटेगराइज करते हैं आप, मतलब कैटेगरी में आप डिवाइड करते हो, कैटेगोराइज, ओके। बट डिस्क्रिमिनेटिव एआई में क्या होता है, आपके पास कोई डॉग का इमेज है सपोज, तो आप ऐसे बहुत सारे डॉग का इमेज आपने दे दिया जेनरेटिव एआई मॉडल को, तो जेनरेटिव एआई मॉडल क्या करेगा, डिफरेंट डॉग का इमेज से वो डॉग का कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न क्या है वो रिकॉग्नाइज करना चाहेगा। अगर ये नेचुरल लैंग्वेज मॉडल होगा तो आप क्या करेंगे, डॉग के बारे में बहुत सारे बुक्स, नहीं तो आर्टिकल्स, ये सारे चीज़ आप नेचुरल लैंग्वेज मॉडल को देंगे एंड नेचुरल लैंग्वेज मॉडल लर्न करेगा बहुत सारे डेटा के ऊपर एंड उसके बाद आप जेनरेटिव एआई को बोलेंगे राइट मी एन एसे ऑन डॉग से इन 500 वर्ड्स। तो जेनरेटिव एआई आपको 500 वर्ड्स में आपको डॉग के बारे में एसे लिख के दे देगा, क्योंकि जेनरेटिव एआई ऑलरेडी हैज बीन लर्नड ऑन अ वैरायटी ऑफ डेटा, ऑन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। अनदर पॉइंट इज दैट जो आउटपुट मिलेगा आपको डिस्क्रिमिनेटिव एआई का, वो जो आउटपुट होगा उस आउटपुट दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ क्लास, क्योंकि वो पर्टिकुलरली बताएगा वो डॉग है, नहीं तो कैट है, डायबिटिक पेशेंट है, नहीं तो नॉन डायबिटिक पेशेंट है, तो क्लास, नहीं तो कोई कैटेगरी, नहीं तो कोई नंबर, नहीं तो प्रोबेबिलिटी के टर्म में बताएगा। बट जेनरेटिव एआई का आउटपुट जो होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और मे बी इन द फॉर्म ऑफ से इमेज और इन सम अदर मीडियम। इसका मतलब क्या होगा, आप किसी ऑडियो दे दिया जेनरेटिव एआई को और आपने कुछ नया ऑडियो जनरेट किया, नहीं तो आपने कुछ नया टेक्स्ट जनरेट किया, नहीं तो आपने कुछ नया इमेज जनरेट कर सकते हो। तो इसका मतलब जो आउटपुट होगा जेनरेटिव एआई का दैट विल नॉट बी अ क्लास, क्योंकि ये क्लास में कैटेगराइज नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक नया टेक्स्ट जनरेट करके दे रहा है अबाउट अ डॉग, ऐसे ऑन अ डॉग। आपके पास लेवल डेटा है, अनलेवल डेटा है एंड ट्रेनिंग कोड है। तो ये ट्रेनिंग कोड यूज करके आप लेवल डेटा एंड अनलेवल डेटा को आप इनपुट डालेंगे जेनरेटिव एआई मॉडल में। नाउ लेवल डेटा कैन बी ऑफ एनी फॉर्म, मतलब दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और मे बी इन द फॉर्म ऑफ इमेज और मे बी इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और इट कैन बी एनीथिंग। तो ये जब आप डालेंगे जेनरेटिव एआई मॉडल के अंदर तो वो जनरेट कर सकता है डिफाइन थिंग्स, मतलब अगर वो टेक्स्ट होगा देन इट कैन जनरेट टेक्स्ट और मे बी इट कैन जनरेट ऑडियो और इट कैन ऑल्सो जनरेट इमेज। क्योंकि एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम लोग मेरा लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, जैसे एडोब फ्लाई यूज़ करके हम लोग प्रॉम्प्ट में क्या डाल रहे हैं, सपोज ये मेरे पास प्रॉम्प्ट है, ये हम लोग प्रॉम्प्ट में टेक्स्ट डाल रहे हैं कुछ, ये टेक्स्ट डाल के हम लोग जेनरेटिव एआई को बोल रहे हैं टू जनरेट सम इमेज बेस्ड ऑन माय टेक्स्ट। जैसे मैंने बोल दिया से फॉर एग्जांपल लेट्स क्रिएट अ वाइट शू विथ रेड बॉर्डर, तो वो क्या करेगा, एक इमेज बना के देगा जहाँ पे ये एक शू है, शू में रेड बॉर्डर है, मतलब इधर सपोज कुछ रेड बॉर्डर है ऐसे करके, ठीक है, ये एक शू बना के देगा। सपोज मेरे पास एक इनपुट इमेज है और मैं जेनरेटिव एआई को बोल रहा हूँ टू जनरेट टेक्स्ट फ्रॉम इट, मतलब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे इमेज कैप्शनिंग, मतलब मैंने एक इमेज देख के बोल दिया इस इमेज का कैप्शन बना के दो मुझे जेनरेटिव एआई को, तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, सेम मेरे पास एक ऑडियो इनपुट है, ये मैंने जेनरेटिव एआई को दिया एंड मैंने जेनरेटिव एआई को बोला दैट
जनरेट मी सम ऑडियो। इसका मतलब है मेरे पास बहुत सारे म्यूजिक है, म्यूजिक 1, म्यूजिक 2, लाइक दैट वे, ऐसे बहुत सारे मेरे पास म्यूजिक है और मैंने जेनरेटिव एआई को बोला टू जनरेट अ न्यू म्यूजिक फॉर मी, कैपिटल एम। तो जेनरेटिव एआई क्या करेगा, म्यूजिक 1, म्यूजिक 2 का कुछ लिरिक्स लेके एक नया म्यूजिक बनाएगा, दैट इज कैपिटल एम, and that is a combination of different rhythms from different musics of M1 and M2। तो एक नया म्यूजिक बना के देगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपके पास टेक्स्ट हो सकता है, टेक्स्ट से आप जनरेट कर सकते हो टेक्स्ट, नहीं तो टेक्स्ट से आप जनरेट कर सकते हो इमेज, एंड इवन यू कैन जनरेट ऑडियो फ्रॉम टेक्स्ट। ऑल्सो आपके पास इमेज है, उस इमेज से आप जनरेट कर सकते हो टेक्स्ट, नहीं तो इमेज टू इमेज भी जनरेट कर सकते हो, नहीं तो इमेज टू ऑडियो भी जनरेट कर सकते हो। नाउ फॉर एग्जांपल आपके पास जो इनपुट है वो है एक ऑडियो। नाउ इस ऑडियो से आप इमेज भी जनरेट कर सकते हैं, इस ऑडियो से आप टेक्स्ट भी जनरेट कर सकते हैं, एंड ऑडियो टू ऑडियो भी कर सकते हैं यूजिंग जेनरेटिव एआई। नाउ लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। जब हम लोग टेक्स्ट को इनपुट दे रहे हैं जेनरेटिव मॉडल को और टेक्स्ट को आउटपुट में ले रहे हैं, इसका एक एग्जांपल है चैटबॉट। चैटबॉट में हम लोग कुछ इनपुट डालते हैं तो चैटबॉट हम लोग को टेक्स्ट के फॉर्मेट में आउटपुट देता है, नहीं तो चैट जीपीटी हो गया। सिमिलर एग्जांपल है समराइजेशन। आप कुछ बहुत बड़ा लंबा पैराग्राफ लिख दिया चैट जीपीटी में एंड बोला उसको समराइज करने के लिए, एंड दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट टू इमेज का क्लासिक एग्जाम्पल हो गया इमेज जनरेशन। आप प्रॉम्प्ट में लिख दिए मुझे इस टाइप का इमेज चाहिए तो वो इमेज जनरेट करके देगा। टेक्स्ट टू ऑडियो का भी एक अच्छा एग्जांपल है टेक्स्ट टू स्पीच। मतलब आप सपोज कुछ लिख दिया और वो जो आपने टाइप किया है उसको वो ऑडियो में कन्वर्ट करके बोलेगा। दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर दोज पीपल हु आर ब्लाइंड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इमेज टू टेक्स्ट। अ क्लासिक एग्जांपल इज इमेज कैप्शनिंग। इमेज टू इमेज एग्जाम्पल इज इमेज कॉम्प्लीशन। मतलब आपके पास कुछ इमेज है एंड उस इमेज को एनालिसिस करके जेनरेटिव एआई एक नया इमेज बनाएगा। इमेज टू ऑडियो क्लासिक एग्जाम्पल इज एनिमेशन। आपके पास कुछ ऑडियो है उससे आप टेक्स्ट बना रहे हो, इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है पॉडकास्ट कैप्शनिंग। ऑडियो टू इमेज एंड क्लासिक एग्जाम्पल इज स्पीच टू इमेज और वीडियो। ऑडियो टू ऑडियो इसका एग्जांपल मैंने पहले ही बोल दिया, दैट इज म्यूजिक कॉम्पोजिशन। मतलब आप एक नया म्यूजिक, नया एक धुन बना रहे हो फ्रॉम डिफरेंट म्यूजिक्स। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है जेनरेटिव एआई का, एंड आई हैव कवर्ड अ लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन इन माय प्रीवियस वीडियो। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू चेक माय प्रीवियस वीडियो विच आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो ऊपर दिख रहा है, तो आप वो देख लीजिए तो आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल गो इन टू मोर डिटेल्स एंड डेप्थ ऑफ जेनरेटिव एआई।